Hello students, welcome once again. Today we'll be starting with chapter 3rd of your Panorama book for class 12th. I hope you are understanding whatever is being taught to you in these classes. I am trying to summarize all the chapters for you so that you all understand them well. So now our chapter 3rd is divided in two parts. One is the guitar player and second one is the Swayamvar. And the author of this chapter is Suniti Nam Joshi. Now before starting with the story of this chapter, I want to tell you something about these chapters, about the stories of this chapter. So they are taken from Suniti's book Feminist Fables. So you all know what the word feminist means. Of course it is related to women. So both the chapters, they are talking about women empowerment, about women. So about feminist roles, about. So in these stories she focuses on the condition of women in the patriarchal society. Patriarchal society क्या होती है? Where a woman, she is always dominated by a male will, by men. She is when she is not married, she always has to listen to her father or her brothers, and after marriage she is always under pressure of her husband, and after husband her sons, and so on. She is never free to do anything. If suppose we want to do anything, though we say, है ना, we are again and again saying that time have changed, women have become free, but still we can judge ourselves, ask ourselves whether we as ourselves or our mothers or our sisters, if they want permission to do something, if suppose we want to go anywhere, do anything, any course, can we do it without the permission of our parents, that is especially our fathers? So no. So that is what we are living in a patriarchal society, and a patriarchal society is a main dominated society where they never want to see women rising up than men, है ना. कहना अलग होता है, करना अलग होता है. असलियत में अभी तक भी ऐसा नहीं है, ठीक है. और एक्चुअली में ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमको ये लगता ही नहीं अजीब, है ना. घर के अंदर हम बैठे हैं, हमारा भाई बैठा है, हमको कहा जा रहा है कि गेस्ट आ गए, जाओ पानी लेके आओ. वी डू इट, है ना. वी विल नेवर फील दैट कि उसको नहीं कहा, है ना, क्योंकि हमने अपने आप को इसके अंदर, हमने बचपन से इसको देखा है और अब हम इसके एकदम यूज टू हो गए हैं. हमको ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे साथ जो है वो इनइक्वालिटी की जा रही है. लेकिन सुनीति नाम जोशी, शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट दिस इनइक्वालिटी, gender inequality and the stress which a woman is facing in her life to prove her identity. These stories, they are actually thought-provoking and highly relevant to the contemporary Indian society. The story Guitar Player depicts a girl who wants her talent, skills and arts she possesses to be greatly valued, reorganized and given importance. And the story Swayamvar is about women's freedom and focuses on the fact that a certain set roles are assigned to women in the Indian society, and if she wants a little more freedom, the parents and the members of the society are unhappy. Men think themselves to be superior to women and do not like to accept their defeat. However, a woman likes to choose a companion who believes in gender equality, values her talents and accepts his own shortcomings. तो हर लड़की ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहती है. आजकल किसी भी लड़के से पूछो, हाँ आपको कैसी वाइफ चाहिए, शी शुड बी ब्यूटीफुल, उसको सुंदर होना चाहिए, उसके अंदर और बहुत सी क्वालिटीज़ होंगी, उसके अंदर बहुत सी कमियाँ होगी. अ लेडी, अ गर्ल, शी वांट्स अ कंपेनियन हु एक्सेप्ट्स हर एज हर होल. सब कुछ उसका एक्सेप्ट करना चाहिए. ऐसे यही दो छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू जो ऑथर है वो हमें बताना चाह रही है, डिस्क्राइब कर रही है. सो वी कम टू द स्टोरी. द गिटार प्लेयर इज़ अ फर्स्ट स्टोरी, एंड द गिटार प्लेयर इज सेइंग कि एक बार एक लड़की है जो गिटार बजा रही है रोड पे खड़े होकर, और जो पासिंग बाय है वो सब उसको सुन रहे हैं. एंड शी इज़ प्लेइंग सो ब्यूटीफुली कि एक जो पासर बाय है, ही फेल इन लव विद हर, उसको उससे प्यार हो गया. अब जो लड़की है वो उसे पूछ रही है कि इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव और मी. वो बोल रही तुम मेरे म्यूज़िक से प्यार करते हो, ये मुझसे प्यार करते हो, और जो म्यूज़िक है वो चले जा रहा है, ठीक है. अब जो लिसनर है उसके लिए बहुत हार्ड था ये क्वेश्चन का आंसर करना, और वो फाइनली आंसर दे रहा है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ व्हाट इज़ द राइट आंसर. वो कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी, वो लड़की कह रही है, ठीक है. बट दैट्स नॉट ऑल. और वो अपना जो है वो म्यूज़िक बजाने के अंदर लगी रहती है. फिर एक और पासरवाई आता है वहाँ से,
ठीक है। और वो भी उसको बोलता है कि ओ तुम इतनी खूबसूरत है एंड यू आर प्लेइंग द म्यूज़िक सो वेल, आई लव यू। अब फिर से वो लड़की सेम क्वेश्चन पूछती है कि हु डू यू लव माई म्यूज़िक और यू लव मी? Well, I don't know. It's a beautiful instrument. What is the right answer? But she said that wasn't it and went on playing. अब वो she was not satisfied with the answers of both the passerbys and she kept on playing with her instrument. अब जो दोनों passerbys थे they were greatly perplexed, है ना, they were greatly वो हो गया कि कैसे उसका जवाब दिया जाए, कि उसने ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। पूरी रात जो है वो म्यूजिशियन और उसका सवाल और उसकी जो धुन है, उसकी जो ब्यूटी है, वो उनके दिमाग के अंदर घूमती रही और पूरी रात उन्होंने सोचा और अगले दिन वो अपनी तरफ से एकदम जो बेस्ट आंसर है वो लेके दोनों आ गए। ठीक है, जो पहला आया उसने बोला कि आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले द नोट ऑफ म्यूज़िक। बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें म्यूज़िक नहीं आता होगा तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड दूसरा कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा गिटार नहीं होगा ना तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले को क्या पसंद आया था कि गिटार कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं होगा देन ऑल्सो आई लव यू। ठीक है, अब जो लड़की है वो कह रही है कि यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, आई एम अ म्यूजिशियन विच मी डू यू लव इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल। तो वो कह रहा है कि कैसे, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ और ये कैसा प्यार, जब तुम बोल रहे हो कि अगर मुझे म्यूज़िक ही नहीं आएगा और तुम भी तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम किससे प्यार कर रहे हो? आई एम अ म्यूजिशियन, बिना म्यूज़िक के तो आई डोंट सर्वाइव ऑल्सो, सो हाउ कैन यू लव मी विदाउट म्यूज़िक? सो योर आंसर्स आर रॉन्ग। ओ दे सेड डिड वी गिव द रॉन्ग आंसर? येस शी रिप्लाइड वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर। वो दोनों पूछ रहे हैं कि अच्छा अगर हम दोनों ने गलत आंसर दिया तो तुम बताओ कि राइट आंसर क्या है। तो वो लड़की उसको बोल रही है यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे पूरा संपूर्णता से तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। जस्ट एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शेल बी फ्रॉम नाउ ऑन। मुझे संपूर्ण रूप से पूरा एकदम प्यार करो, जो मैं हूँ, जैसे मैं बनूँगी, जैसे मैं रहूँगी, हर चीज़ से तुम्हें प्यार होना चाहिए, मेरी हर पोजेशन से, मेरी हर खासियत से, मेरी हर कमी से। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो लड़का कह रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ हमें आपकी पसंद है, आपके अंदर बहुत कमियां भी होगी। येस एग्रीड द गर्ल एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। अब उसने बोला कि मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए और वो अपनी जो ट्यून है, एक सैड ट्यून उसने बजाना स्टार्ट कर दी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्टोरी विच इज़ स्वयंवर। अब जो स्वयंवर स्टोरी है वो क्या कह रही है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। तो एक बार एक प्रिंसेस है जो क्या करती है, सीटी बजाती है, बहुत अच्छी सीटी बजाती है। डोंट विसल सेड हर मदर, डोंट विसल सेड हर फादर, बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग। Years went by and she became a woman. By this time she whistled beautifully. Her parents grieved. What man will marry a whistling woman? Said her mother dolefully. Well, said her father, we will have to make the best of it. I will offer half my kingdom and the princess in the marriage to any man who can beat her at whistling. The king's offer was duly proclaimed, and soon all the palace was jammed with suitors whistling. It was very noisy, most were terrible and a few were good, but the princess was better. Now let me set a test and perhaps some good will come out of it. Then she turned to the suitors. Do you acknowledge that you were beaten by me fairly? No, they all roared, all except one. We think it was the magic or some sort of trick, but one said yes, yes. He said, I was beaten fairly. The princess smiled and turning to her father, she pointed to this man. If he will have me, she said, I will marry him. तो वो क्या हो रहा है, एक लड़की है, एक प्रिंसेस है जिसको सीटी बजाने की बहुत शौक है। उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं मत बजाया करो सीटी, मत बजाया करो सीटी, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर गर्ल्स। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसकी वो हैबिट नहीं जाती है। एंड व्हेन शी ग्रोज अप टू बी अ वुमेन हर विस्लिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एवर। बहुत अच्छा वो सीटी बजाना, शी एक्सेल्स इन हर फील्ड। अब उसकी मदर को टेंशन होती है कि आफ्टर ऑल एक सीटी बजाने वाली लड़की को कौन शादी करेगा। तो उसके फादर बोलते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जो भी कोई राजकुमार मेरी बेटी को सीटी बजाने की प्रतियोगिता के अंदर हरा देगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, और जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य और ऑफकोर्स मेरी बेटी उसे मिल जाएगी।
तो ये जो भविष्यवाणी है, मतलब ये जो प्रोक्लेमेशन है, ये अनाउंसमेंट है, सब जगह हो गया। और जो महल है वो बहुत अच्छे अच्छे राजकुमारों से, सूटर से भर गया। और ऑफकोर्स जो बहुत अच्छी अच्छी सीटियाँ बजाते हैं, तो बहुत नॉइज़ था, बहुत शोर था। सब सीटी कुछ अच्छी बजा रहे थे, कुछ बुरी भी बजा रहे थे, लेकिन प्रिंसेस जैसी सीटी किसी ने भी नहीं बजाई। फिर प्रिंसेस आई और वो बोलते कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने आप सबसे अच्छी सीटी बजाई। तो जो सब है वो चिल्लाने लगे, आदमी और अपनी डिफीट मान ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एवरीवन दिस रोड इन अ सेम वॉइस कि नो, तुमने हमको नहीं हराया, कोई मैजिक था या कोई और इंस्ट्रूमेंट तुमने बजाया है, तुमने हमसे अच्छी सीटी तुम बजा ही नहीं सकती। उनमें से एक सूटर था जो रेडिली ही एग्रीड कि येस, तुमने हमें हरा दिया है, हम तुमसे हारे हैं। एंड द प्रिंसेस सेड कि अगर ये मुझसे शादी करना चाहता है तो आई वुड लाइक टू हैव हिम एज माई हस्बैंड बिकॉज ही वैल्यूज़ a women's talent. So this is the story. I hope you understood the chapter and you also understood the message which the author actually wants to give to us, that we should appreciate, we should love a woman wholefully, है ना, everything, her shortcomings plus her possessions, everything should be loved by a man, है ना. And we should not, because we have to live in the society, we always have to do a lot of sacrifices. It should come to an end now. So I hope all of you understood and liked this chapter. Have a good day all of you. And once understood all of you, please in comment section do comment on the story of this chapter. I'll be waiting for your comments.